Midweek service. Welcome you all. Let's worship the Lord. From the highest of heights to the depths of the sea, creation's revealing your majesty. From the colors of fall to the fragrance of spring, picture unique in the song that it sings. All exclaiming, indescribable, uncontainable. You place the stars in the sky and know them by name. You are amazing, God. All powerful, untamable, awestruck before to our knees as we humbly proclaim. You are amazing, God. Yes, Lord, indescribable is your love. Who has hold every lightning bolt where it should go? Oh, sin heavenly storehouses laden with snow. Who imagined the sun and gives source to its light, yet conceals it to bring us the coolness of night. None can fathom, indescribable, uncontainable. You place the stars in the sky and you know them by name. You are amazing, God. All powerful, untamable, awestruck before to our knees as we humbly proclaim. You are amazing, God. You are amazing, God. तुझसे ही प्यार है, तुझसे ही तुझसे ही प्यारी है, तुझसे ही तुझसे ही प्यार है, तुझसे ही तुझसे ही यारी है, तुझसे तू ही मेरा पहला प्यार, तू ही मेरा सच्चा यार, तू ही मेरा पहला प्यार, तू ही मेरा सच्चा यार। तेरे आने का मुझको इंतज़ार, तेरे आने का मुझको इंतज़ार। तुझसे ही प्यार है, तुझसे ही तुझसे ही यारी है, तुझसे तू ही मेरा पहला प्यार, तू ही मेरा सच्चा यार। तेरे आने का मुझको इंतज़ार, तेरे आने का मुझको इंतज़ार। कब से खड़े हैं तैयारी करके, कब से खड़े हैं
तेरा इंतजार है यीशु मसीह तेरे आने का मुझको इंतजार तेरे आने का मुझको Good evening, church. गुड इवनिंग कलीसिया। Welcome to Wednesday evening service. स्वागत है बुधवार की सभा में आपका। We are so glad that you are watching us all. और बहुत खुश है कि आप हमें देख रहे हैं। Very great worship by Sandeep brother. बहुत ही अद्भुत स्तुति थी ब्रदर संदीप के द्वारा। If anybody is watching us for the first time, we want to welcome you. So you can write a comment in a comment box. You will be given a very special gift from our team. और यदि कोई पहली बार इस सभा को देख रहा है तो आप अपना संदेश कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, जिससे आप हमारी टीम से एक तोहफा पाएंगे। If anybody is watching us the second time, we also welcome you also. You can also write a comment in the comment box. We will welcome you. And you'll be getting a special gift from our team. और यदि आप दूसरी बार देख रहे हैं तो भी आप अपना संदेश कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, जिससे आपको भी हमारी टीम से एक तोहफा मिलेगा। Church, we are almost nearing 2 months of this lockdown period. और ये लॉकडाउन पीरियड का 2 महीना हो चुका है पूरी तरह से। But it is amazing that we are connected with each other, enjoying our fellowships, portions of everybody. लेकिन ये बहुत ही अद्भुत संगति का समय, हम एक दूसरे के हिस्से में हम हिस्सा लेकर आनंदित हो रहे हैं। This period seems like we never get to speak with everybody in this way as we are speaking in this lockdown period now. और इस तरह से पहले हम एक दूसरे से बातचीत नहीं कर पा रहे थे, जिस तरह से अब हम इस लॉकडाउन समय में कर पा रहे हैं। Praise God. परमेश्वर की स्तुति हो। He works all things together for good. वो हर चीज भलाई में काम करता है। Great. Church, we have our Bible colleges on Monday and Tuesdays. और सोमवार और मंगलवार को बाइबल कॉलेज जारी है। You can join our classes. Links will be sent in the WhatsApp group. अब हमारी बाइबल कॉलेज की क्लास में बैठ सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप में उसकी लिंक भेजी जाती है। Other days in the evening 6 o'clock we are doing a devotion. और दूसरे दिनों में शाम को 6 बजे डिवोशन होता है। You can hear and get edified. आप उसको सुन के प्रोत्साहित हो सकते हैं। All these men of God, Pastor Binu, Pastor Dharmesh, Pastor Ajay, Bablu, Robin, they are doing fantastic jobs. You can hear them. और ये जो हमारे प्रभु के दास है, पास्टर बीनू, पास्टर धर्मेश, पास्टर अजय, रॉबिन, बबलू, इन सब से आप सुन सकते हैं। Yeah. Church, we also encourage you. Men's time and ladies' time is happening on Saturdays. और भाई और बहनों, हम आपको प्रोत्साहित करते हैं। शनिवार को हमारी मेंस टाइम और लेडीज टाइम होता है। Take part in it and be edified. और उसमें हिस्सा लेके प्रोत्साहित हुए। We all do this for one purpose. हम ये सारी चीजें सिर्फ एक ही मकसद के लिए करते हैं। For the glory of God. परमेश्वर की महिमा के लिए। We welcome you. If you have any prayer needs, you can speak to our pastors. You can share your prayer needs. You can write us in the mail. We will definitely pray for you. और यदि आपकी कोई प्रार्थना की जरूरत है तो फिर आप पास्टर से बात कर सकते हैं या लिख सकते हैं, तो आपके लिए प्रार्थना की जाएगी। We also have a praise report. We have been doing very good in last month offering. और हमारे पास बहुत ही एक खुशी की खबर है कि हम अपनी ऑफरिंग के मामले में बहुत ही अच्छा चल रहे हैं। Last month we were doing really good. पिछले हफ्ते बहुत ही अच्छा चल रहा था ऑफरिंग में। We thank you. हम धन्यवाद करते हैं आपको। We also encourage and edify you to do much more in this month as well. और हम आपको प्रोत्साहित करते हैं कि इस महीने भी आप जारी रखिए ये चीजें। We give by faith to God. हम विश्वास से परमेश्वर को देते हैं। And it's house of the Lord. और परमेश्वर के भवन के लिए देते हैं। And there's a joy in giving. और देने में आनंद है। I encourage you all for it. मैं आप सबको इस सब के लिए प्रोत्साहित करता हूँ। We are going to hear a short intro from Brother Bablu. और हम छोटा सा जो इंट्रो होगा वो ब्रदर बबलू के मुंह से सुनेंगे। Followed by there will be a message from Brother Stefan. और उनके बाद संदेश होगा पास्टर ब्रदर स्टेफान का। Let's have a great expectation from the Lord. और हमारी परमेश्वर से एक आशा हो कि हम उनसे कुछ सुने। Our God speak to us. कि परमेश्वर हमसे बातें करे।
Thank you so much. धन्यवाद। Enjoy the service. Bye. इस सभा का आनंद लीजिए। बाय। आप सभी का स्वागत है इस शाम में, है ना, बुधवार की सभा में। आइए प्रार्थना करते हैं, फिर कुछ वचन शेयर करेंगे, है ना। बहुत अद्भुत समय रहा है अभी तक। पवित्र परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं पिता आज के इस दिन के लिए, समय के लिए। पिता हम आपकी महिमा करते हैं, राजा आपकी प्रशंसा करते हैं, धन्यवाद करते हैं। एक व्यक्ति को पिता आप बातें करना, पिता आने वाले मैसेज को भी अनॉइंट करना, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सो पहला यूहन्ना से कुछ वचन पढ़ूंगा, पहला यूहन्ना का पहला अध्याय से, है ना। सो आइए उस वचन को पढ़ते हैं। पहला यूहन्ना का पहला अध्याय। उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना, जिसे हमने अपनी आँखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ, है ना। तो यूहन्ना क्या बोला? यीशु मसीह के बारे में बोला है। उस जीवन के वचन के बारे में बोलता है, जिसे हमने सुना, जिसे हमने देखा, और सबसे पहली बात क्या बोला? जो आदि से था, अनंत से जो था। यीशु मसीह, अगर यूहन्ना के पहला अध्याय में भी देखा जाए तो सेम चीज़ यूहन्ना लिखता है कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। और सेम यहाँ आपने क्या है, जो पढ़ने वाले हैं, जो उसके ऑडियंस हैं, उनके लिए वापस से यूहन्ना लिख रहा है कि क्या है, उस जीवन के वचन के बारे में जो क्या है, आदि से था, जो अनंत से था। बोलता है हमने आँखों से देखा और जिसे हमने क्या है, छुआ। दो चीज़ें खास मेंशन कर रहा है यूहन्ना कि जिसे हमने छुआ और जिसे अपनी आँखों से देखा, और उसके बारे में बहुत अद्भुत बोला है। फिर बोलता है यह जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ। हाँ, कितना अद्भुत बोला है, उस जीवन प्रकट हुआ। यूहन्ना 1:14 भी अगर देखा जाए क्या है, वो आगे जाके वहाँ बोलता है वचन देहधारी हुआ। यहाँ पे भी क्या बोला है, उस अनंत जीवन का वचन। फिर वहाँ पे बोलता है क्या है, वचन देहधारी हुआ, और यहाँ पे बोला क्या है, प्रकट हुआ, और बोलता है हमने देखा और गवाही दे रहे हैं। कितना अद्भुत है कि क्या बोला, गवाही दे रहे हैं। और दूसरा बोलता है उस तुम्हें अनंत जीवन का समाचार देते हैं। हाँ, जो क्या है, पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ। अनंत जीवन का समाचार। यीशु मसीह देह धारण से पहले पिता के साथ था। हाँ, सृष्टि आने से पहले क्या है, क्योंकि पिता क्या है, अलग नहीं था, पिता यीशु एक थे, है ना। तो यीशु मसीह पिता परमेश्वर के साथ था। अभी क्या है, वो हमारे साथ क्या है। हाँ, इस समय एक समय था जब यीशु मसीह 2000 साल पहले इस दुनिया में देह धारण हुआ यीशु मसीह का, और वही क्या है, लोगों प्रकट हुआ, वचन देहधारी हुआ। और वचन क्या है, हाँ, हमारे बीच में क्या है, डेरा डाला। यूहन्ना पहले उसमें बोलता है। तो यूहन्ना जब लिख रहा था क्या बोला है कि हमने देखा है, सुना है, अपनी आँखों से देखा है, उसे ध्यान से देखा है। तो कुछ चीज़ें जो यूहन्ना क्या है, बहुत अच्छे से समझाता है। कुछ इंसिडेंट मैं सोचा था यूहन्ना याद कर रहा है जब इसको लिख रहा है, तो क्या यूहन्ना कुछ इंसिडेंट याद कर रहा है जो उनके यीशु मसीह के 3.5 साल के सेवकाई के समय में हुआ, जो यूहन्ना उस समय देखा, जो उन्होंने सुना, है ना। लाइक मत्ती का 3रा अध्याय, जब यीशु मसीह का बपतिस्मा होता है तो वहाँ पे पिता की ओर से आवाज़ आती है कि यह मेरा प्रिय पुत्र है। हाँ, वहाँ पे एक आवाज़ आती है, यह मेरा प्रिय पुत्र है। फिर मत्ती के 17 में जब यीशु मसीह का रूपांतरण होता है तो वहाँ पे भी आवाज़ आती है क्या, कि यह मेरा प्रिय पुत्र है। जब उससे पहले पतरस बोलता है क्या, कि प्रभु यहाँ हमारा रहना अच्छा है, तो हम क्या है, 3 तंबू बनाते हैं, तेरे लिए, एलिया के लिए, मूसा के लिए, और यहाँ पे हमारा रहना अच्छा है। पतरस बोलता है, तब जाके पिता की ओर से आवाज़ आती है क्या, कि यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो, है ना। तो यूहन्ना उस इंसिडेंट को जो वहाँ पे हुआ है, उन चीज़ों को क्या है, याद कर रहा है, और बहुत अद्भुत तरीके से क्या है, रख रहा है कि वचन जो अनंत से था, वचन देहधारी हुआ समय काल में। अभी वो उसका क्या है, जो हमने देखा है उस वचन के बारे में, जो उस वचन के बारे में सुना है, जिस वचन को हमने छुआ है, उसके बारे में क्या है, बता रहे हैं। अब बताने का क्या है, एक मकसद है। यूहन्ना क्या है, एक मकसद है जो बता रहा है, इसलिए बोला कि आगे उस वचन पढ़ें। जो कुछ हमने देखा, 3रा वचन, जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो। और हमारी यह सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। क्या बोला है, कि जो हमने देखा है, सुना है, तुम्हें भी बता रहे हैं, ताकि तुम भी हमारे साथ क्या है, सहभागी हो। और हमारी यह सहभागिता बोलता है पिता के साथ है और यीशु मसीह के साथ।
प्रेरितों के दूसरा अध्याय में हम देखते हैं वहाँ पे वचन लिखता है कि जो लोग उद्धार पाते थे प्रतिदिन क्या होता था, जोड़ दिए जाते थे, मसीह के संगति में जोड़ दिए जाते थे, जो कलीसिया थे उसमें जोड़ दिए जाते थे। आज भी जो विश्वास करता है वो क्या है, मसीह के देह में जोड़ दिया जाता है, एक कलीसिया का हिस्सा होता है। और उसका क्या है, हमारा पहले परमेश्वर के साथ संगति बनती है, परमेश्वर के साथ संबंध में जुड़ते हैं, यीशु मसीह के साथ, फिर मसीह के देह के साथ, तो हमारा क्या है, संगति बढ़ जाती है ना। हम उद्धार ग्रहण करते हैं, विश्वास करते हैं यीशु मसीह पे, यीशु मसीह हमारे पाप क्षमा करता है, अपने लहू के द्वारा हमें क्या है, शुद्ध करता है, और फिर हमारा पिता के साथ क्या है, वो सहभागिता हो जाती है। पहले जो हम उसके दुश्मन थे, अभी उसके पुत्र कहलाते हैं, उसके साथ हमारा संबंध जुड़ जाता है, और हम क्या है, उस पिता के साथ एक संगति कर सकते हैं, उसके देह के साथ हम संगति कर सकते हैं, जो कलीसिया है, क्योंकि पिता और यीशु मसीह एक हैं। हमारा उन दोनों के साथ संगति होती है, तो फिर उसके देह हम क्या, उसकी देह हैं, क्योंकि हम उसके आपस में एक हो जाते हैं, है ना। तो हम क्या, यूहन्ना बोला कि हम इसलिए बता रहे हैं कि हमारे साथ जो एक कलीसिया है उसके साथ संगति हो, और उससे पहले क्या है, पिता के साथ। बताने का मकसद है, समाचार जीवन का वचन बताने का मकसद है कि क्या है, उद्धार ग्रहण करें, विश्वास करें, और पिता के साथ संगति में जुड़ें, है ना। बहुत अद्भुत है। तो इसलिए बोलता है, और ये बातें हम इसलिए लिखते हैं कि हमारा आनंद पूरा हो जाए। यीशु मसीह भी बोलते हैं कि क्या, मैं चाहता हूँ तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए, है ना। ठीक है, जीवन के वचन है, एक वचन है जो जीवन के। इस दुनिया में बहुत सारे वचन हो सकते हैं, लेकिन वचन ऐसे भी हैं जो मारते हैं, लेकिन जो वचन परमेश्वर की ओर से आता है वो क्या है, जीवन देता है। हम बहुत सारे चीज़ें देखते हैं बाइबल में, यीशु मसीह जो बहुत सारे वचन क्या है बोले, उसमें वचन है, और ये वचन जो परमेश्वर का वचन है इसमें जीवन भरा है, क्योंकि ये स्वयं ये यीशु मसीह है, स्वयं ये वचन यीशु मसीह वो परमेश्वर है जिसने सृष्टि को रचा, है ना। जब वो स्त्री आई यीशु मसीह के पास जिसको लहू बहने का रोग था, तो यीशु मसीह ने क्या बोला, तेरे विश्वास ने तेरे पाप को क्षमा किया, है ना। कुछ ऐसे भी वचन है क्या जो जीवन लेके आते हैं, कुछ ऐसे भी वचन है जो क्या है, हर्ट करते हैं, जो क्या है, ठेस पहुंचाते हैं, जो क्या है, मारते हैं। लेकिन परमेश्वर की ओर से आया हुआ वचन क्या है, जीवन लेके आता है, और वो जीवन क्या है, पिता के साथ संगति जोड़ता है, यीशु मसीह के साथ, और उसके क्या है, देह के साथ, है ना। तो बहुत अद्भुत है कि क्या है, यीशु मसीह एक समय काल में क्या है, प्रकट हुआ, जब देह धारण हुआ, और उस चीज़ को यूहन्ना ने क्या है, उस चीज़ों को देखा है कि जब यूहन्ना के 13वें अध्याय में अगर देखते हैं, प्रभु भोज के समय में वहाँ पे सब चेले बैठे हैं, यूहन्ना भी स्वयं वहाँ पे बैठा है। खास करके बात यह है कि ये यूहन्ना लिखने वाला यीशु मसीह का वो चेला है जो बोलता है कि डिसाइपल हुम जीसस लव, वो चेला जिससे यीशु क्या है, प्रेम करता था, है ना। तो यूहन्ना वहाँ पे रहा है, यूहन्ना के उस 13वें अध्याय में उसने यीशु मसीह को छुआ, स्वयं यीशु मसीह ने छुआ, क्योंकि वहाँ पे लिखा कि यीशु मसीह ने क्या है, भोज के बाद क्या किया, अपने कपड़े उतारा, पानी लिया और उनके पाँव धोए। यीशु मसीह ने उन्हें छुआ, उन्होंने यीशु मसीह को छुआ, उनका जीवन बदल गया। पुनरुत्थान के बाद इवन क्रूस पे वो लोग चले गए, लेकिन जब वापस से यीशु मसीह का पुनरुत्थान के बाद वो लोग देखते हैं तो उनका जीवन बदल जाता है। जो लोग क्रूस के टाइम पे डर के भाग गए थे, वही अब क्या है, अभी आके क्या है, प्रेरितों के 3 में लिखा कि ये अनपढ़ लोग क्या है, इस संसार को उलट पुलट कर दिए, है ना। तो अद्भुत है, जीवन का वचन जो क्या है, परमेश्वर का वचन है, और वही वचन हमें क्या है, सौंपा गया है। आज हम वही जीवन का वचन दूसरों को देते हैं, हम कोई अपनी ओर से नहीं देते हैं। ये दूसरा कुरिन्थियों के जिसमें पौलुस बोलता है 34 में कि हम कुछ अपनी ओर से मिलाते नहीं हैं, जो परमेश्वर का वचन है वही सुसमाचार हम तुम्हें देते हैं। हम चापलूसी नहीं करते हैं, कुछ उसमें मिलाते नहीं हैं, है ना। तो अद्भुत है यीशु मसीह का क्या है, जीवन का वचन, वो वचन जो अनंत से था, वचन देहधारी हुआ, और वचन क्या है, जीवन का वचन है। यूहन्ना 14:6 में यीशु मसीह बोलते हैं, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ। तो जीवन क्या है, वो वचन ही नहीं है सिर्फ, वो जीवन है। यीशु मसीह क्या है, वो जीवन है जो हम आज जी रहे हैं, है ना। मसीह का जीवन, उसने अपना जीवन हमें दिया उस क्रूस पे बहाए हुए लहू के द्वारा, उस क्रूस पे अपनी मौत के द्वारा उसने क्या है, हमें अपना जीवन दिया जो अनंत जीवन कहलाता है। वो पिता जो अनंत से था, उसने जो हम नाश होने वालों के लिए क्या है, अपना वो अनंत काल का जीवन दिया। कितना अद्भुत है। हमारे पास अब एक जीवन है जो क्या है, अनंत का जीवन है।
जो क्या है हमारे पास वो जीवन है जो पिता के साथ है, हमारे सब पास वो जीवन है जो उसके संगत देह के साथ है, यीशु मसीह के साथ है ना। अद्भुत है कि यह जीवन का वचन परमेश्वर ने हमें दिया हुआ क्या है जीवन है, ना कि हमारा है। यह जीवन परमेश्वर की ओर से दिया हुआ है और इसमें क्या है बताने का मकसद है कि क्या एक आनंद है वो पूरा हो जाए। वो आनंद क्या है मेन है कि परमेश्वर के साथ संगति में हम जुड़ जाते हैं, ना कि हम अपने कुछ करते हैं। मेन क्या है परमेश्वर के साथ संगति में जुड़ जाते हैं। जो हमें क्या है हम दुश्मन थे उसके, लेकिन अभी हम उसके पुत्र हैं। यूहन्ना 1:12 में बोलता है कि जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने क्या है उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। अभी हम उसके दुश्मन नहीं हैं, अभी हम उसके संतान हैं, इसलिए हम उसके साथ संगति कर सकते हैं। कितना अद्भुत है कि परमेश्वर हमारा क्या है हमें वो जीवन दिया, अपना खुद का जीवन, ताकि हमारा वो आनंद पूरा हो जाए। यीशु मसीह जो क्या जीवन है वो हमें दिया अपना जीवन, है ना। आमीन। सो आइए प्रार्थना करते हैं। पवित्र परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं पिता, आज के इस दिन के लिए समय के लिए धन्यवाद करते हैं। आने वाले मैसेज को भी अभिषेक करना यीशु मसीह के नाम से, आमीन। योग्यता से बढ़ के दिया हे अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया हे अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु में। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु में। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। सच्चा जिंदा खुदा है, तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा है, तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊँ ना प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके
Good evening, Greater Grace Church of Navi Mumbai. Good evening, Greater Grace, Navi Mumbai. And we are really looking forward to draw close to God tonight and have a time of fellowship together. Though we cannot meet personally, we are all in different places right now. But it's a time to really draw close to God and center our thoughts on Him now. So इस समय का उपयोग हम करेंगे. ये अद्भुत समय है जब हम परमेश्वर के पास जाएंगे. हम एक दूसरे के आमने सामने नहीं हो सकते, परंतु इस तरीके से हम जुड़ सकते हैं. We are just going to read one verse from the book of Habakkuk, chapter 3, verse 17 to 19 together. और आइए हम पढ़ते हैं हबक्कुक की किताब का 3रा अध्याय, उसकी 17वीं से 19वीं आयत. So if you have your Bibles, you can turn to Habakkuk chapter 3, verse 17 to 19. यदि आपके पास आपकी बाइबल है तो आप हबक्कुक 3 17 से 19 खोल सकते हैं. Let's just pray. God, we just really thank you for being our God, that we are your people. पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आप हमारे परमेश्वर हैं और हम आपके लोग हैं पिता परमेश्वर. What an incredible privilege that we can be sons and daughters of the Most High God. कितनी अद्भुत बात है पिता परमेश्वर कि हम सर्वोच्च परमेश्वर के बेटे और बेटियां हो सके पिता परमेश्वर. And you are all powerful, you are all in control, you know everything that happens and you want the best for us always. पिता परमेश्वर, आप सामर्थ्यशाली हैं, सबसे ज्यादा सामर्थ्यशाली हैं. आप हमारी भलाई चाहते हैं पिता परमेश्वर और आप सब कुछ जानते हैं पिता परमेश्वर. You really are our Father, आप सचमुच में हमारे पिता हैं the perfect Father. और परफेक्ट फादर है पिता परमेश्वर. And we just ask that you speak to us and that we can receive from you. और हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमसे बातें करेंगे और हम उसको ग्रहण कर पाएंगे पिता परमेश्वर. Bless these words. इन शब्दों को पिता परमेश्वर, वचनों को आशीषित कीजिए. Amen. आमीन. So, chapter 3, verse 17. So, चैप्टर 3 अध्याय 3 और उसका 17वीं आयत. Though the fig tree may not blossom, nor fruit be on the vines, though the labor of the olive may fail. क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों में फल न लगे और न दाख लताओं में फल लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए. And the fields yield no food, though the flock may be cut off from the fold, and there be no herd in the stalls. और खेतों में अन्न न उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां न रहें और न थानों में गाय बैल हों. Yet I will rejoice in the Lord, I will joy in the God of my salvation. तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा और अपने उद्धार करता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा. The Lord God is my strength, He will make my feet like a deer's feet, and He will make me walk on the high hills. यहोवा परमेश्वर मेरा बलमूल है, वह मेरे पांव हरनियों के समान बना देता है, वह मुझको ऊंचे स्थानों पर चलाता है. Wow, the prophet Habakkuk is writing this passage at a time that is a very stressful time in the nation of Israel. और भविष्यवक्ता हबक्कुक जिस समय ये किताब लिख रहा था, उस वक्त इजराइल के लिए बड़ा मुसीबत का समय था. The nation has moved very far away from God. और ये राष्ट्र इजराइल का बहुत दूर जा चुका था परमेश्वर से. This was written maybe 15-20 years before the final fall of Jerusalem 586. और यरूशलेम का पूर्ण पतन होने के पहले लिखी गई किताब है ये. The nation is living in sin, they are far away from God. और जो राष्ट्र था वो पाप में जी रहा था और परमेश्वर से वो बहुत दूर हो चुके थे. There is a sure judgment that has already started, but it's about to happen. और एक न्याय है जो शुरू तो हो चुका है लेकिन पूरी तरीके से आने वाला है. The king in Judah at the time, Jehoiakim, is an evil king. He is not a good example. There is a spiritual deterioration. और जो राजा था यहूदा का, वो अच्छा राजा, दुष्ट राजा
था, अच्छा राजा नहीं था यहोकिम, और पतन की शुरुआत हो चुकी थी। And at the same time, God is allowing this new world empire and superpower of Babylon to rise up and become very victorious and start to dominate the world. और इस वक्त इस शक्ति का शुरुआत होनी शुरू हुई, यानी बाबुल की या बेबीलोन की, जब वो एक विश्व का सबसे बड़ी शक्ति बनने लग गया था। But we see here towards the end of this book how Habakkuk is choosing, despite this, the judgment that is to come, the horrible circumstances of the nation at that time, he still chooses to praise God. और इतनी मुसीबत के समय में भी हम देखते हैं कि जब सब कुछ बुरा होने वाला था, न्याय आने वाला था, तो भी हबक्कुक इस समय परमेश्वर को आशीषित करता है, परमेश्वर की प्रशंसा करता है, स्तुति करता है। Though everything is stripped away from me, there is no produce, there is no of the land, there is no flocks in the herd, there is total barrenness, there is a judgment. Still, I will choose to praise God and to rejoice. और जबकि सब कुछ खाली हो चुका था, हर चीज, गौशालाएं खाली थी, खेतों में कोई उपज नहीं थी, हर तरीके से देश उजड़ा पड़ा था, परंतु वो चुनाव करता है कि मैं परमेश्वर की स्तुति गाऊंगा। And this is a supernatural joy and relationship with God. और ये एक अलौकिक आनंद है और परमेश्वर के साथ अद्भुत रिश्ता है। To choose to praise Him and worship Him and thank Him, irrespective of our circumstances. कि हम परमेश्वर को धन्यवाद दें, उसकी प्रशंसा करें, उसकी स्तुति करें, चाहे हमारे जीवन में कुछ भी होता रहे। There are two types of joy we can have in our lives. दो तरीके के आनंद हमारे जीवन में हो सकते हैं। One is just when everything goes right and there are no problems in our life and everything is beautiful. It's very easy to have temporary joy and peace because circumstances are good. पहला ऐसा होता है कि हमारी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही है, जिंदगी में सारी चीजें सही हो रही हैं, तो ये थोड़े से समय के लिए ये जो आनंद होता है, हम उसको महसूस कर सकते हैं। You sit on a beach, there is a sunset, there are no problems, there is no worries, everything is perfect. और जैसे कि हम समुद्र के किनारे बैठे हैं, आराम से बैठे हैं, कोई चिंताएं नहीं है, ऐसा समय आ सकता है। It's very easy to even for an unbeliever to feel joy and to feel happiness and to feel even gratitude at times like that. और एक अविश्वासी के लिए भी ये एक ऐसा समय हो सकता है कि जो वो परमेश्वर के लिए कृतज्ञता अनुभव करे और ये धन्यवाद दे वो। But what about the times when life is not perfect? परंतु उन समयों के बारे में क्या जब जीवन परफेक्ट नहीं लगता, सब कुछ सही नहीं है। When we go through trials, जब हम परीक्षाओं से गुजरते हैं, health issues, हमारे तंदुरुस्ती या स्वास्थ्य के कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, financial uncertainty, हमारे सामने आर्थिक समस्याएं हैं, anxiety and worry about the future, और आगे आने वाले भविष्य के बारे में हमें पक्का पता नहीं है। In Philippians chapter 4 verse 4, Paul is writing, फिलिपियों के 4:4 में पौलुस लिखता है, and this is such a well-known verse that everyone can quote it. और ये बहुत जानी मानी आयत है, कोई भी इसको कोट कर सकता है, कोई भी इसको बोल सकता है। I'm sure everyone who is watching this can quote it with me from your homes when I read it, because you know it. It's one of these verses that we learned from the very beginning we became Christians. और ये घर पे बैठे हुए जो लोग मुझे सुन रहे हैं, वो मेरे साथ इस वर्स को कोट कर सकते हैं, क्योंकि शुरुआत से हमने ये आयत हमने सीखी है। Even little children are singing that song, rejoice in the Lord always. Again, I will say rejoice in Sunday school. और संडे स्कूल में के बच्चे तक ये गाना गाते हैं कि आनंदित हो हमारे साथ, और मैं कहता हूँ कि आनंदित रहो। But we think about the circumstances when the Apostle Paul wrote this. परंतु यदि हम ये सोचें कि किन परिस्थितियों में प्रेरित पौलुस ने ये पंक्तियां लिखी, तो his life was not sitting on a beach with a sunset and everything was perfect with
glass of cold water in his hand and good food and friends around him. That was not his life when he wrote these words. तो उसका जीवन उस वक्त ऐसे नहीं चल रहा था। प्रेरित पौलुस था कि वो जैसे कि समुद्र के किनारे अपने दोस्तों मित्रों के साथ बैठा है, उसके हाथ में पानी का ग्लास है और सामने समुद्र दिख रहा है और सूरज डूब रहा है, ऐसा नहीं हो रहा था। He is not a free man. वो बंदी था उस वक्त, वो फ्री नहीं था, आजाद नहीं था। He knows that he is most likely going to be sentenced to death. और उसको पता था कि उसको फांसी होने वाली है या उसको मृत्यु की सजा होने वाली है। And he is writing, rejoice in the Lord. और वो कहता है कि आनंदित रहो प्रभु में। And then he adds these words that makes it impossible. और फिर वो ये शब्द उसमें जोड़ता है जिससे कि ये चीज असंभव हो जाती है। Always. हमेशा। And again, I will say rejoice. और मैं फिर से कहता हूँ कि आनंदित रहो। It's unbelievable. It's an unbelievable standard that I read that verse, and when I really think about it, how can I rejoice always? कितना आश्चर्य होता है ये सुन के कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं हमेशा सदा आनंदित रहूं। If he would have written rejoice in the Lord sometimes, and again I say rejoice. यदि वो कहता कि परमेश्वर में आनंदित रहो कभी-कभी, मैं फिर से कहता हूँ आनंदित रहो। That would have been easier to relate to. वो आसान होता लोगों को समझना वो चीज। But always. परंतु सदा। Always means always. और सदा का मतलब है हमेशा। How can I do that? कैसे कर सकता हूँ मैं ऐसा? It doesn't say rejoice in the Lord when things are going well. ये ऐसा नहीं कहता है कि परमेश्वर के साथ आनंदित रहो परमेश्वर में जब सब कुछ ठीक चल रहा हो। And again I will say rejoice. और फिर से मैं कहता हूँ कि आनंदित रहो। And in another book, Paul is writing something very similar. और एक दूसरी किताब में पौलुस बिल्कुल ऐसा ही कुछ और लिखता है। In 1 Thessalonians chapter 5 verse 16. और पहला थिस्सलुनीकियों का 5:16 में वो कहता है Rejoice always. हमेशा आनंदित रहो। And then he adds, pray without ceasing, in everything give thanks. कि निरंतर प्रार्थना करते रहो और हर चीज में धन्यवाद दो। So rejoice. सो आनंदित रहो। Praise. स्तुति करो। And give thanks. और धन्यवाद दो। And that's similar to what he writes in the book of Philippians chapter 4 we just read. और बिल्कुल वैसे ही है जैसे फिलिपियंस में हमने देखा। He says, be anxious for nothing. फिलिपियों के 4:10 में वो कहता है कि किसी भी बात की चिंता ना करो। But in everything with prayer and supplication let your every request be made known to God. परंतु हर चीज में प्रार्थना के द्वारा अपनी जरूरतें परमेश्वर को बताओ। So again, it's prayer and it's thanksgiving. सो एक बार फिर से ये प्रार्थना है और धन्यवाद देना है। But it starts with rejoicing. परंतु ये शुरू होता है आनंदित होने से। And in both these portions of his writing, Paul is putting the word always. और दोनों हिस्सों में पौलुस ने हमेशा या सदा शब्द का इस्तेमाल किया है। I look at myself and I say, that is an impossible standard. I cannot do that. और जब जैसे मैं अपने को देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि ये बहुत मुश्किल है करना, ये किया ही नहीं जा सकता, असंभव है। I cannot go through one day rejoicing always, all the time. It's impossible. I cannot do it. एक भी दिन ऐसा नहीं हो सकता कि मैं पूरे दिन सिर्फ आनंदित ही होता रहूं, ये असंभव है। Because all it takes is one little thing going wrong and that rejoicing will stop very quickly. और एक छोटी सी चीज गलत हो जाए और हमारा आनंद रुक जाता है। But it's not possible to produce that type of joy just by trying to be positive or just by exercising self-discipline. और इस तरीके का आनंद पैदा नहीं किया जा सकता कि मैं पॉजिटिव थिंकिंग करूं या फिर मैं बहुत अनुशासन से रहूं तो भी। In 2 Corinthians chapter 12 verse 9, Paul writes, दूसरा कुरिन्थियों में पौलुस लिखता है that my grace is sufficient for you. मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। And my strength is perfected in your weakness. और मेरी सामर्थ्य तेरी कमजोरी में पूरी होती है। So that's
we can only get to the point that we rejoice irrespective of circumstances in our life when we are weak. सो इसका मतलब है कि हम उस जगह पे तभी पहुंच सकते हैं कि बुरी परिस्थितियों में भी हम आनंदित हो सके कि जब हम कमजोर होते हैं. When I'm weak, only then do I realize that I need the strength of another. क्योंकि जब मैं कमजोर होता हूँ तभी मैं महसूस करता हूँ कि मुझे जरूरत है सामर्थ की जो मेरे पास नहीं है. So rejoice always. सो इसलिए हमेशा आनंदित रहो. What's the biggest enemy of our rejoicing always? और क्या है सबसे बड़ा दुश्मन शत्रु हमारा हमेशा आनंदित होने का? What's the opposite of joy? ये आनंदित होने का विपरीत शब्द नहीं है. The opposite of joy is fear and anxiety. देखा जाए तो आनंद का जो विरोधाभासी शब्द है वो है डर. And that's why Paul is contrasting this in Philippians chapter 4. He's saying, rejoice always. Rejoice in the Lord always. And again, I will say rejoice. और इसलिए पौलुस यहाँ पर कहता है कि परमेश्वर में आनंदित रहो और मैं कहता हूँ सदा आनंदित रहो. And then, as often in Paul's writings, the contrast comes, the opposite comes. और फिर उसके बाद वो उसका विरोधाभास दिखाता है. Be anxious for nothing. किसी भी बात की चिंता मत करो. I remember, I think it was 3 or 4, maybe 5 years back when Pastor Shibeli came and for the convention, for the conference. और मुझे याद है कि 5 साल पहले, शायद 4 या 5 साल पहले पास्टर शिबेली कॉन्फ्रेंस के लिए आए थे. And he was preaching a very, very strong message. It was a very edifying message, but it was very strong. And I received a lot from that personally. He preached it on, it was on anxiety. और मुझे याद है कि उन्होंने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज उस दिन संदेश जो दिया था वो हम सबको बहुत उन्नति देने वाला था मगर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था वो मैसेज. And he spoke about how anxiety actually it's a sin. और उन्होंने समझाया जो कि मैंने उस दिन बहुत ग्रहण किया कि यदि हम चिंता करते हैं तो हम पाप करते हैं. Because we may not live in fear, but the anxiety and being worried about small things in our lives, it's something that all of us go through all the time. क्योंकि हो सकता है कि हम लगातार डर में ना जीते हों, परंतु हम लगातार किसी न किसी चीज की चिंता करते ही रहते हैं. And that's why it is so amazing when we meet people who say that I'm a good person, I'm not a bad person, I do what's right. You know, even being anxious is a sin, and it means we are not trusting God. So इसलिए आश्चर्य होता है हमें जब लोग कहते हैं कि मैं बहुत अच्छा व्यक्ति हूँ, मैं कोई गलत नहीं करता, क्योंकि हम एक जो सबसे बड़ी गलती करते हैं वो है चिंता करना. And I look at myself so often and I say, it is so easy to drift in to that place of, instead of rejoicing and praising God and being thankful, we go to the other extreme and we start to worry about small details. और मैं खुद अपने बारे में जब सोचता हूँ, मैं ये सोचता हूँ कि कितना आसान है उस जगह पर चले जाना जहाँ हम आनंदित होने के बजाय चिंता करने लग जाते हैं. And what is it we worry about? और हम किस बारे में चिंता करते हैं? Christ is addressing this in Matthew chapter 6. और मत्ती की 6 में यीशु मसीह इस बारे में कहते हैं. In chapter 6 verse 25. और 25वीं आयत में he's saying, do not worry about your life. कि अपने जीवन के बारे में चिंता ना करो. About the practical details of your life, what you will wear, what you will eat. कि हम क्या पहनेंगे, कि हम क्या पहनेंगे, हम क्या खाएंगे. And in chapter 6 verse 34. और 6 का 34 में he's saying that do not worry about tomorrow. और कल के बारे में चिंता ना करो, वो कहता है. It's very real for us to be worried and concerned. क्योंकि हमारे लिए कितना ये असली है, ये सच है कि हम आसानी से चिंता में चले जाते हैं. But it's always related to temporary things that concerns us here and now in this life. परंतु ये जो सदा शब्द है वो इससे रिश्ता है उसका, इससे रिलेटेड है वो कि वो अभी के बारे में है, इस दुनिया के बारे में है. And when we feed that anxiety, when we feed that fear, और जब हम उस डर को और जब हम उस चिंता को
और भी ज्यादा हम उसको बल देते हैं, बड़ा करते हैं। It's like a hungry lion, like a hungry lion. वो बिल्कुल वैसा है कि एक जैसे भूखा शेर हो, If you feed it, it will just grow and grow. उसको आप खिलाते जाएंगे तो वो बढ़ता ही चला जाएगा। In 1 Peter chapter 5 verse 8, पहला पतरस 5:8 कहता है the devil is likened to a roaring lion. कि शैतान जो है वो एक दहाड़ते हुए सिंह की तरह है। And that's exactly what anxiety and fear in our life is. और बिल्कुल वैसे ही डर और चिंता हमारे जीवन में है। And when we feed it, और जब हम उसको खिलाते जाते हैं it grows. वो बढ़ता जाता है, बड़ा होता जाता है। And it grows completely to the point that it can take over our entire life. और वो इतना बड़ा हो सकता है कि पूरे हमारे जीवन पर वो अधिकार कर ले। It's very relevant to be afraid and scared of what's going on right now. There is a virus. There's nothing wrong in being careful, and we should be responsible. और ये सही होगा कि जो चारों तरफ हमारे चीजें चल रही हैं और जो स्थिति चल रही है, हम उसके हिसाब से चलें और जिम्मेदारी से हम बर्ताव करें। But I'm not watching the news. I'm not feeding myself with forwards that comes to me on WhatsApp about children dying and hospitals full. I don't want that in my mind. परंतु मैं न्यूज़ नहीं देखता और मैं वो चीजें नहीं अपने दिमाग में भरना चाहता जहां मैं देखता हूं, जहां मुझे दिखाई देता है कि बच्चे पड़े हुए हैं और अस्पताल पूरे भर चुके हैं। We actually are responsible for deciding what we allow to come into our minds. क्योंकि हम जिम्मेदार होते हैं कि हम अपने दिमाग में कौन सी चीजों को आने दें। Many years back, there was a large study that was conducted by one of the top universities in America. और कुछ दिनों पहले एक अध्ययन किया गया था अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी के द्वारा on major fear that people had in their lives. कि कौन सा सबसे बड़ा डर होता है या कौन से सबसे बड़े डर होते हैं जो इंसानों की जिंदगी में होते हैं, पाए जाते हैं। And they studied a large number of people, and the fears that the things they were worried about in their lives could happen. और उन्होंने बहुत सारे लोगों का अध्ययन किया और उन सारे डरों का अध्ययन किया जो इन सब लोगों को लगता था। And they found that 60% of the things that people were having fear and were worried about and anxious about would never happen. और उन्होंने ये पाया कि 60% चीजें जो जिनके बारे में लोग चिंता करते थे वो उनके जीवन में होती ही नहीं। 20% were things that were of the past that you could not do anything to change, and it was just nothing can be done about it. और 20% वो चीजें होती थी जो हो चुकी थी और अब उनके बारे में कुछ नहीं किया जा सकता। 10% were small irrelevant things that really there was no need to worry about these things at all. It was nothing can happen anyhow. और 10% वो चीजें होती थी जो छोटी मोटी चीजें होती थी और जिनके बारे में कुछ ज्यादा चिंता करने की बात नहीं थी। And only 5% of what people were worried about were actually things that there was any reason to worry about that could actually come to pass. और सिर्फ 5% ऐसी चीजें थी जो शायद सचमुच में हो सकती थी और जिनके बारे में चिंता करना चाहिए था। 5 things out of 100. और सोचिए 100 में से सिर्फ 5 चीजें। And the rest of the things would never even happen in the first place. बाकी सारी चीजें होंगी ही नहीं देखा जाए तो। But our emotions are very powerful. Our mind is very powerful. परंतु हमारी भावनाएं जो हैं वो बहुत स्ट्रांग होती हैं, बहुत सामर्थ्यशाली होती हैं। हमारा दिमाग जो होता है वो बहुत सामर्थ्यशाली होता है। I once heard this illustration और मैंने एक बार ये उदाहरण सुना था that many years back in another country there was they have these refrigerated trucks where they put meat and things that has to be frozen and transported. कि किसी और देश में जहां पर बड़े-बड़े ये ट्रक होते हैं जो कि रेफ्रिजरेटेड होते हैं जिसमें मीट को यहां से वहां ले जाया जाता है। Like containers, big containers. और ये बड़े-बड़े कंटेनर्स होते हैं। And they have a very powerful refrigeration unit like your AC trains have on the outside of the unit, and then they are cooled down to -20 and they transport frozen things, ice cream, other things in those big trucks. और इन ट्रकों के ऊपर बाहर के साइड में
वो एयर कंडीशनिंग यूनिट्स होती हैं या रेफ्रिजरेशन यूनिट्स होती हैं जो कि ठंडा रखती हैं और इसमें आइसक्रीम और इस टाइप की चीजें भी ट्रांसपोर्ट की जाती हैं. And there was a worker who was at that, where they have all these big transportation units, who was cleaning up the units. और एक जगह पर इनकी सफाई हो रही थी. And as he was cleaning one of the units, और जब वो एक वाली यूनिट को साफ कर रहा था, the door shut by mistake and the latch fell down. और दरवाजा बंद हो गया और उसकी कड़ी लग गई बाहर से. The latch that was outside fell down. जो बाहर से थी वो वाली कड़ी लग गई. And he could not get out. That it was at the end of the day, there was no one around. He was stuck in this container with this freezing unit that would, that is cold. और वो अंदर ही बंद हो गया और बाहर किसी भी तरीके से वो बाहर नहीं निकल सकता था. और जैसा हम जानते हैं कि वो रेफ्रिजरेटर यूनिट थी तो वो हर चीज को ठंडा करती थी. He knew he would only have about 30 minutes to get out, and then after that he would himself freeze to death. और उसको पता था कि सिर्फ 30 मिनट है उसके पास बाहर निकलने के लिए. उसके बाद वो कुछ नहीं कर सकता. So he tried everything to get out. तो उसने सब कुछ कोशिश कर ली बाहर निकलने की. Everything you and I would have tried too, screaming, banging, praying, everything. और चिल्लाना, दरवाजा ठोकना, प्रार्थना करना, सब कुछ उसने ट्राई कर लिया. Finally, he knew all the symptoms that you get tired. Then before you close your eyes, you get tired, you fall asleep in the cold, and then you freeze to death. और उसको अच्छे से पता था कि क्या क्या उसके ऐसा जब होता है, जब इंसान जम के मरने वाला होता है, तब उसके साथ क्या क्या चीजें होने लग जाती हैं. उसको पता चल गया था कि अब मुझे टायर्ड लग रहा है, मुझे थका हुआ लग रहा है, अब नींद आ रही है, इसका मतलब थोड़ी देर में मैं जमने वाला हूँ. So he wrote down a message for his family. तो उसने एक खत लिखा अपने परिवार को. I'm feeling the tiredness. I'm cold. I'm shivering. कि मैं बहुत थका हुआ हूँ, मुझे ठंड लग रही है, मैं कांप रहा हूँ. There is a great tiredness coming over me. These may be my last words. और मेरे पर बहुत बड़ी थकान आ रही है और शायद ही मेरे आखिरी शब्द हो. And next morning when they opened the truck, और अगले दिन जब उन्होंने वो ट्रक खोला, they found him dead inside. उन्होंने पाया कि वो मृत था अंदर. When they did the post-mortem to analyze the cause of death, और जब उन्होंने उसका पोस्टमार्टम किया कि किस कारण से मृत्यु हुई है, तो his body had all the symptoms of a person who had frozen to death. और उसके शरीर में वो सारे चीजें दिखाई दे रही थी, निशानियां दिखाई दे रही थी उस व्यक्ति की जो कि जम के मर जाए. There was only one issue, मगर एक ही समस्या थी, that the refrigerating unit on that truck was faulty. It did not work. कि जो उस ट्रक की जो रेफ्रिजरेटिंग यूनिट थी वो उस दिन काम नहीं कर रही थी. That's how powerful the mind is. That is how powerful fear and anxiety is. और इतना हमारा दिमाग सामर्थ्यशाली है और इतना ही डर और चिंता इतनी ताकतवर हो सकती है. It's so powerful that it can actually kill us. वो इतनी ताकतवर हो सकती है कि वो हमें मार सकती है. And that is the power and of fear. और ये है डर का की जो सामर्थ्य है वो ऐसी हो सकती है. In the book of Job, chapter 3, verse 25, अय्यूब की किताब 3:25 में Job is saying that the thing I have greatly feared has come upon me. अय्यूब कहता है कि वो चीज जिससे मैं सबसे ज्यादा डरता था मेरे पर आन पड़ी है. And it's a principle in our life that the things we think about and worry about, we actually can attract into our life. So ये एक तरीके से सिद्धांत है कि जिन चीजों से हम बहुत ज्यादा डरते हैं उनको हम अपने जीवन में एक्चुअली न्योता दे रहे हैं आने का. In Matthew chapter 13, और मत्ती के 13 में यदि हम देखें, the word of God is choked परमेश्वर का जो वचन है वो by the cares of this life. और इस जिंदगी की चिंताओं के द्वारा वो दबा दिया जाता है. The worries of this life. और इस जीवन की जो चिंताएं हैं, And
anxiety and worry और जो घबराहट है और डर है cannot exist at the same time as faith. वो हो ही नहीं सकते यदि विश्वास है जीवन में तो वो उसके Rejoice साथ नहीं है। always. Rejoice always. और इसलिए आनंदित रहो Be सदा, anxious for nothing. और किसी भी चीज के बारे में चिंता ना करो Always. हमेशा सदा Nothing. कभी भी We cannot rejoice and be anxious at the same time. It doesn't work. They cannot exist at the same time. हम आनंदित और चिंतित एक ही समय पर हो ही नहीं सकते क्योंकि दोनों एक साथ नहीं रह सकते So इसलिए we need to have the right perspective, तो हमारा सोचने का एक सही नजरिया होना चाहिए because the things that we worry about and that we are scared of and that we have fears in our lives, everyone has fears in their lives. We have fears in our life. Those things are always connected to what is happening right now in our temporary life. क्योंकि जिन चीजों के बारे में हम चिंता करते हैं जिन चीजों से हम डरते हैं वो हमेशा हमारे इस समय के जीवन से रिलेटेड होती हैं इसके बारे में होती हैं Paul is writing in 2 Corinthians chapter 4 और दूसरा तिमोथी 4 में पौलुस लिखता है that we look not at the things that are seen, but we look at the things that are not seen. कि हम उन चीजों की ओर देखते हैं जो दिखती नहीं पर जो नहीं दिखती हैं So the things that we can see are temporary, but the things that we cannot see are eternal. क्योंकि जो चीजें हम देख सकते हैं वो थोड़े समय की हैं परंतु जो चीजें हम नहीं देख सकते वो अनंत की हैं We can only apply faith to things we cannot see. हम विश्वास का इस्तेमाल सिर्फ उन चीजों के लिए कर सकते हैं जो नजर नहीं आती If we can see it, we don't need any faith. यदि हमें नजर आती तो उसके लिए हमें विश्वास की जरूरत ही नहीं पड़ती And when we as a believer, we have this eternal perspective. और विश्वासी के तौर पे जब हमारा ये अनंत का नजरिया होता है तो Not only looking at here and now, but we are looking at what actually is to come. और हम इस बारे में ही ध्यान न दें कि अभी और इस समय क्या हो रहा है परंतु जो आने वाला है उसके बारे में सोचें Salvation, a God who loves us, eternity with God. और उद्धार और परमेश्वर जो हमसे प्रेम करता है अनंत का जीवन जो हम परमेश्वर के साथ गुजारेंगे Wow! Then all of a sudden the problem seems smaller when we think about these things. तो फिर उसके बाद अचानक ये सारी चीजें हमें छोटी नजर आने लग जाती हैं 2 days ago, I was speaking to my 2 daughters about, the situation with this coronavirus, etc. आज ही मैं अपनी दोनों बेटियों से छोटी बेटियों से बात कर रहा था इस कोरोना वायरस की परिस्थिति के बारे में And the youngest one is very upset because her birthday will come most likely during the lockdown. और छोटी वाली बहुत नाराज थी इस बात से क्योंकि उसका बर्थडे जो है उसका जन्मदिन जो है वो शायद लॉकडाउन के दौरान होने वाला है And the elder one is also frustrated, like I am also frustrated. I would rather not have the lockdown, like probably you too. और बड़ी वाली भी कह रही थी कि मुझे लॉकडाउन बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा और वैसे ही शायद आपको भी लग रहा होगा So they were telling me how unlucky they are to be born in this century. Why did you not have us later? Why could you not make sure we were born 2022 instead of now? This is all bad. और वो कह रहे थे कि ऐसा क्यों होने दिया आपने हमें कि हमें इस वक्त पैदा होने दिया इसके पहले इसके बाद आपको हमें पैदा करना चाहिए था उन्होंने ये कहा For many years, Hannah, our eldest daughter, has been wanting to have an animal, and we have said no. और बहुत सालों से हैना और इनकी छोटी बेटी लीजा चाहते हैं कि उनको एक पालतू जानवर मिले We cannot take responsibility for a dog or a cat or a rabbit. We cannot do it. It's not possible. We travel. We cannot do it. और क्योंकि हम बहुत यात्रा करते हैं इसलिए हमारे लिए ये संभव नहीं है कि हम कोई कुत्ता या बिल्ली या खरगोश पाल सकें So for more than 2 years, her dream has been to have a parrot, a bird. So बहुत सालों से उनका एक सपना था कि एक तोता लिया जाए So during the lockdown, I gave in and we got the parrot. तो लॉकडाउन के दौरान मैंने उनके लिए वो तोता खरीद दिया So when we were sitting there and I was listening to how bad life is, the lockdown, how much longer, और जब ये बातें हो रही थी कि लॉकडाउन
कितने दिन चलेगा और लॉकडाउन क्या है और क्यों है। I asked her, मैंने उससे पूछा if the lockdown would not have happened, कि यदि ये लॉकडाउन नहीं हुआ होता do you think that you would have got Rio? Rio is the name of the bird, Rio. तो क्या तुम सोचते हो कि तुम्हें ये रियो, ये जो तोते का नाम है वो रियो है, कि क्या तुम सोचते हो कि तुम्हें ये रियो मिल जाता। My daughter understands fully well that this happened only because of the lockdown. You know, that was the right time for her to push it. And, you know, lots of time. And Rio came into our family. So, मेरी बेटी अच्छी तरीके से जानती थी कि ये सिर्फ लॉकडाउन की वजह से उनको रियो मिल पाया है और ये सही समय था, उसने मुझ पे जोर डाला। So now, change your perspective. So अब देखिए नजरिया बदल गया देखने का। No lockdown, no Rio, or lockdown and Rio. What would you prefer? So क्या चीज तुम पसंद करोगे कि लॉकडाउन ना हो मगर उसकी वजह से रियो भी नहीं मिलेगा, या फिर लॉकडाउन और रियो? तो तुम्हें इन दोनों में से क्या पसंद है? Problems, समस्याएं challenges, और चुनौतियां, trials. परीक्षाएं। With eternal life with God, forever His child, with all spiritual blessings in heavenly places. और हम तो परमेश्वर के बच्चे हैं जिनको सारी आत्मिक आशीषें मिल चुकी हैं और हम अनंत में परमेश्वर के साथ होंगे। Or no problem, और या फिर दूसरी तरफ हमारे सामने चुनाव है कि कोई समस्या नहीं, no worries in this life, इस दुनिया में कोई चिंताएं नहीं, no trials, और कोई परीक्षाएं नहीं, and eternity in hell separated from God. और अनंत जो हो वो नरक में गुजारे परमेश्वर से अलग होकर। Wow, I am saved. I have God. God has saved me. I'm secure in my relationship with Him. Wow. तो अचानक मुझे समझ में आता है कि अरे वाह, मैं तो उद्धार में आ चुका हूँ और मैं परमेश्वर के साथ अनंत के लिए सुरक्षित हूँ। My problem seems small and all of a sudden. और मेरी समस्याएं अचानक छोटी नजर आने लगती हैं I'm not scared anymore. और अब मुझे डर नहीं लग रहा। These things are small issues. ये छोटी छोटी समस्याएं हैं। It's painful for a little while, but it's nothing compared to the glory and the security we have knowing that we belong to God forever. और ये कुछ समय के लिए हमें परेशान कर सकती हैं, हमें हमारे लिए दर्दनाक हो सकती हैं, परंतु ये कुछ भी नहीं है उस चीज के सामने, उस महिमा के सामने और उस सुरक्षा के सामने जो अनंत की हमें परमेश्वर के साथ मिली हुई है। Imagine lying sick, worrying about your salvation and your eternal standing with God. That is something to worry about. That is a good reason to fear and to be worried. और सोचिए कि परमेश्वर के सामने हम खड़े हैं और हमारा उद्धार नहीं हुआ है, तो ये चीज है जिसके बारे में हमें डरना चाहिए और सोचना चाहिए। That is a reason for fear. और ये कारण होना चाहिए हमारे डर का। But we have no fear. We are eternally secure in our relationship with God. He has done it all. पर क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ हमारे लिए कर लिया है, तो इसलिए अनंत की सुरक्षा हमारे पास है। हम परमेश्वर के साथ अनंत तक सुरक्षित हैं। He who knew no sin became sin so that we could be made the righteousness of God in Him. और वो जिसकी पाप से पहचान नहीं थी हमारे लिए पाप बना ताकि हम उसकी धार्मिकता ले सकें। Wow. So sometimes perspective is all we need. So इसलिए कई बार सिर्फ हमें एक सही नजरिए की जरूरत होती है। And our perspective changes our focus on what we think about. और हमारा सोच और हमारा नजरिया उस चीज को बदलता है जिस चीज पर हम ध्यान लगा रहे हैं। When Paul writes in 2 Corinthians chapter 10 verse 5, और जब पौलुस लिखता है दूसरे कुरिन्थियों 10:5 में, take every thought captive. कि हर विचार को अधीन करो। Yes, we are responsible for our thoughts. हाँ, हम जिम्मेदार हैं अपने सोच के लिए, अपने विचारों के लिए। We don't want to feed that hungry lion of anxiety and fear. और हम उस भूखे शेर को और नहीं खिलाएंगे जो डर और चिंताएं हैं। We want to feed faith. हम विश्वास को खिलाएंगे। We want to feed joy, हम आनंद को खिलाएंगे thankfulness, gratitude, और धन्यवादित होने को खिलाएंगे और कृतज्ञता को।
Rejoice always. आनंदित हो हमेशा सदा, Pray without ceasing. निरंतर प्रार्थना करो, In everything give thanks. हर चीज में धन्यवाद दो। In 1 Peter chapter 5 verse 7, पहला पत्रस 5:7 में cast all your anxieties on him because he cares for you. उस पर अपनी सारी चिंता छोड़ दो, क्योंकि वो तुम्हारे लिए केयर करता है, या वो तुम्हारे लिए ख्याल करता है, वो तुम्हारा ख्याल करता है। We take every thought captive और हर उस ख्याल को अधीन करो अपने, and we actively cast our anxieties and fears on him because he cares for us. और हर चीज को, अपने हर डर और चिंता को उसके ऊपर डाल दो, क्योंकि वो तुम्हारी चिंता करता है। And gratitude और कृतज्ञता, brings us back. वो हमें वापस लाता है, Perspective. हमारे सोचने के तरीके को वापस लाता है। My little problems, my anxieties, my fears, मेरी समस्याएं, मेरे डर, मेरी चिंताएं, no, it's small. It's painful right now, but compared to eternity and life with God, unbelievable. और अभी के लिए वो काफी डरावनी हो सकती हैं, परंतु यदि मैं अनंत के हिसाब से नजरिए से सोचूं तो वो कुछ भी नहीं है। And that's one thing we don't need to worry about. और इसलिए उस बारे में हमें चिंता करने की जरूरत है ही नहीं। Fear not, little flock, because it is the Father's good pleasure to give you the kingdom. डरो मत छोटे झुंड, क्योंकि ये तुम्हारे पिता की खुशी है कि वो तुम्हें राज्य दे। Fear not. डरो मत, It is your Father's good pleasure. He wants to give you the kingdom. It is yours. और वो तुम्हें राज्य देना चाहता है, और वो खुशी से देना चाहता है, We belong to Him. क्योंकि हम उसके हैं। And with that perspective, और फिर इस नजरिए से it's easier to go through life and focus on the things that really matters. और इस नजरिए से जब हम सोचते हैं तो जिंदगी में से गुजरना हमारे लिए आसान होता है, और सही चीजों पर ध्यान देना हमारे लिए संभव हो पाता है। And to decide, I will not feed that beast with what it wants of anxiety and fears. It will just grow. और मैं उस जानवर को और खाना नहीं खिलाऊंगा जो डर और चिंता का है, We belong to God. क्योंकि हम परमेश्वर के हैं। In Jesus' name, amen. यीशु मसीह के नाम में आमीन। Thanks, Rashmi, for a great translation. I could hear your alarm going off there, so I got the point midway. No, it wasn't an alarm. I'm sorry. See you, everyone. Love you. Bye.